ایران امریکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اہم دورے پر تہران آمد۔ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امن معاہدے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت کے ساتھ آج سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو۔ اسلام آباد MOU کو خطے میں قیام امن کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں محسن نقوی کے دورے کا مقصد مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ محسن نقوی آج سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے۔ ایران سے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں آج مذاکرات متوقع، ہو سکتا ہے میں بھی وہاں جاؤں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی میڈیا سے گفتگو، کہا وٹکوف اور جیریڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ ایرانی، پاکستانی اور قطری وفود کے پہنچنے پر ہم اپنی تیاری کریں گے۔ وٹکوف اور کشنر مذاکرات کے کچھ تکنیکی پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی بات چیت کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد فالو اپ کے طور پر تکنیکی سطح کے مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بطور ثالث سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ اسرائیل نے امن معاہدہ اڑا کر رکھ دیا۔ لبنان میں دوبارہ جنگ بندی اعلان کے بعد بھی جنوبی علاقوں پر وحشیانہ حملے۔ لبنانی شہری دفاع کے مطابق آج ہونے والے حملوں میں 32 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے نباتیہ، جزین اور سور کو نشانہ بنایا۔ بمباری سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 83 ہو گئی، 141 زخمی۔ غزہ میں بھی 10 شہادتیں۔ الجزیرہ کا کیمرہ مین بھی اسرائیلی درندگی کا شکار ہونے والوں میں شامل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ہم نے معاہدے کے مطابق عمل کیا۔ امریکہ بھی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روکے۔ امریکہ نے ایسا نہ کیا تو امن معاہدے کو خطرہ پڑ جائے گا۔ ہمارا اصول وعدے کے بدلے وعدہ ہے۔ چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کی سربراہی میں ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات کرے گا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریف۔ ایکسیوس سے انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان بہت اچھی ہم آہنگی ہے۔ فوجی سربراہ اپنے وزیر اعظم کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں۔ پاکستان نے واقعی معاہدے میں ہماری بہت مدد کی۔ میری لینڈ میں فوجی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران کے ساتھ 60 دنوں میں حتمی ڈیل کرنا ہوگی۔ حتمی ڈیل نہ ہوئی تو ہم وہ کریں گے جس سے ایران کو خوشی نہیں ہوگی۔ بنو میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے۔ پولیس کے مطابق دھماکوں میں 7 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ DPO کے مطابق پہلا دھماکہ مسافر گاڑی میں ہوا، دوسرا امدادی سرگرمیوں کے دوران ہوا۔ متاثرہ وین گاؤں ہاتھی کھیل سے بنو آ رہی تھی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنو دھماکے کی شدید مذمت۔ بنو میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں ملک کو درپیش دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن حکمت عملی اختیار کی جائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بعض واقعات کے پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں۔ اس حوالے سے حکومت اور سیکیورٹی ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 73ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ شہید بی بی نے 21 جون 1953 کو آج ہی کے روز ذوالفقار علی بھٹو کے گھر کراچی میں آنکھ کھولی۔ دنیا کی عظیم درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ والد کی گرفتاری کے بعد 1977 میں عملی سیاست کا آغاز کیا۔ انتہائی طویل اور کٹھن سیاسی جدوجہد کے بعد پہلی مرتبہ 1988 میں پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ محرم الحرام کے احترام میں محترمہ کی سالگرہ سادگی سے منائی جا رہی ہے۔
कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं मगर पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। सरदार अतीक ने कहा कि हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए हैं। इंतशार में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। इंतशार फैलाने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केस में बरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा। मुकदमे में नामजद 22 में से 20 मुलजमान को सजा सुनाई गई। एटीसी अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की मुमकिन तब्दीली से मुतल्लिक़ खबरें मुस्तरद कर दी। कहा ऐसी इत्तलात बेबुनियाद हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ अनासिर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मौसर अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कौमी असम्बली ने 407 खरब रुपए से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। इस रकम में सबसे बड़ा हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में सुप्रीम कोर्ट, विफाकी आईनी अदालत और इलेक्शन कमीशन समेत पार्लिमानी उमूर और ईवान सदर के लिए भी अरबों रुपए के फंड्स रखे गए हैं। बजट में ज़राअत और आसान कर्जों के लिए रकम मुख्तस की गई। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया। अब बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे तस्दीकी अमल मुकम्मल कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना का कायमा कमेटियों की बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा बजट दस्तावेज में तज़ाद का इल्ज़ाम झूठ है। मेरे खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक दुरुस्त नहीं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने आ गईं। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपए 45 पैसे की लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपए 6 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली की जा रही है। जराये के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी से पहले पेट्रोल की फी लीटर कीमत 192 रुपए 5 पैसे बनती है। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता और ट्रांसपोर्ट किराए कम कराने का मुतालबा। बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, कम से कम किचन वाली सामान में तो कमी होनी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं उस तरह क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल इतना ऊपर गया है तो कम से कम पुराने रेट पे तो आना चाहिए, 200-250 तक तो आना चाहिए। भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार बड़ी मेहरबानी, बड़ी इन्हें नवाजिश हुक्मरानों की, हमारे हुक्मरान की, इन्होंने पेट्रोल कम किया। इट्स अ गुड स्टेप। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फुली बाकी चीज़ें भी चाहिए। पंजाब में घड़े खुले छोड़ने पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मैन हॉल्स में नेट नस्ब करने की हिदायत। कहा 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएं। खुदाई करने के बाद घड़े खुले नहीं छोड़ सकते। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी भी दे दी। पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशस्तें रखी जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को। बलाए सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 5 मुहर्रम को इब्न ज़याद ने कूफियों को मस्जिद में जमा किया। कूफी ज़ोमा में यजीद की तरफ से भेजे गए तहाइफ तकसीम किए गए।
तहाइफ देने के बाद इब्न ज़ियाद ने कूफियों के ज़ुमा को इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में उमर साद के लश्कर की मदद करने की हिदायत की। अजीज तर मुझे रखता है बुरगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। ये दिन वालिद के एहतराम, खिदमत और मोहब्बत के अहद की याद दिलाता है। रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर एक अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, जख्मी और जाँ बहक अफराद को फौरी तौर पर गिम्स अस्पताल गुम्बद मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया में ट्रेन हादसा, ड्राइवर हलाक, 99 मुसाफिर जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ब्रेडफोर्ड के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रेन ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी मुसाफिरों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा रूट पर ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स 1 35 साल बाद रिटायर। ट्रम्प ने अपने नए तैयारे की नकाब कुशाई कर दी। कहा, यह खुसूसी तैयारा मेरी मर्जी के मुताबिक है। नया एयरफोर्स 1 बोइंग 747 कतर ने अमरीकी सदर को तोहफा दिया। तैयारी की मालियत $400 मिलियन। सदर ट्रम्प ने पुराने एयरफोर्स 1 पर आखिरी परवाज स्विट्जरलैंड में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए की। अमरीकी सदर के लिए मुख्तस बोइंग 747 तैयारा 1990 में अमरीकी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ था। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट की 96 साला तारीख में पहली मर्तबा अमेरिकी टीम मुसलसल 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। ग्रुप सी के मैच में मराकेश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्किया को 1-0 से शिकस्त दी। तुर्की का वर्ल्ड कप में सफर तमाम।